Dear students, hope you must have seen my previous video part 3 because it has very important questions of based on properties of determinant given in exercise 4.2. If you don't watch it, you are certainly going to lose marks because 6 marker question or 4 marker question in today's pattern in the last year examination also it has come. So you must watch it if you have not. Thank you. Today we'll cover up topics area of triangle. See students, in 10th class you have learnt your formula of area of triangle as 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, and here we wrote at the unit as square units. Now the same thing is to be transformed into determinant form. So in determinant we write area as 1 by 2, and since the vertices of the triangle is given A as x1 y1, B as x2 y2 and C as x3 y3, so we write here x1 y1 and 1, x2 y2 and 1, x3 y3 and 1. And if you operate the determinant, you would be getting a value. Let us say you are getting A. If you operate this, so after operating the determinant by the given values of coordinates of triangle ABC, it may come as positive or negative, but you are always supposed to take the absolute value of that. Why? Because if the triangle exists, why I am talking like if the triangle exists, because there may be situation that you have 3 points, because in the exercise you will find that there are certain points all lying on the same line, collinear points, which we call in earlier classes in 10th class. So it is a line, all the points ABC lying on this. So if points are given, we are not aware whether the triangle is being formed or not, and hence if we try to find the area of that triangle and area comes to be 0, then we conclude that the points lie on the same line and they are collinear points and they won't form any triangle, so the area has become 0. Now why I am asking you to take the value of area as absolute value, because area if exist, area of triangle if exist, it must be always greater than 0. If it is area is equal to 0, exactly equal to 0, no triangle exists. Means area of somehow becomes triangle equals to 0, it means triangle is not formed. Rather, the points, 3 points are collinear, implies that 3 points are collinear. So it is given as a remark in your NCERT. And also suppose in condition that area of triangle is already given, area of triangle is given. Let us say, understand this situation. Let us say we have a triangle and here we have or one point at origin, another point at let us say 4, 0, and let us say here we have let us say here we have a certain point, let us say let this be 3 units and this be 2 units, so 2, 3, and this be the height, so height is of 3 units. So what will be the area of the triangle? Area of triangle in such case, you know, are already aware of that base into height. So let us calculate by our earlier concept, half base is of 4 units and height is 3 units, the coordinate of y-axis, that is our height. Now what will the area of such triangle? The triangle's area will be 6 square units. Now there may be a situation that if the area is given and certain point is missing, let us say this point is K and you have been provided to find the value of the K,
if area of the triangle is given as 6 square units. So there must be a situation like this where the coordinate of x will remain the same and it becomes -3 coordinate, because it is just reverse of that. This is there. So we can think of a situation that if the area of a triangle is given, then in that case, let us say it is a units, and you are supposed to find the value of the missing coordinate of any point of the triangle. So we may assume in that case that k must have two values, because you can visualize even this triangle has 6 square units if it gets upside down, keeping all the coordinates as same. This is origin 0 0. So we can very easily find that if you take k as -3, then also the area will, because triangle is exists. What I said, if triangle exists, area exists, and in that case coordinate must be there. So we can find that for the same value k or -k, we have the same area. So whenever we have been given area of triangle, we must take plus minus sign. Hence, suppose area of triangle here we have calculated and we want to remove this absolute value sign, we must take plus minus sign to write the value of the triangle. So we'll take up some questions of the exercise 4.3 and try to acknowledge all these concepts today. चलिए बच्चों, हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 4.3. तो हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बाकी जो रह जाएगा आप होमवर्क करेंगे. 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं. इसमें कह रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ द वर्टिसेस आर गिवन. वर्टिसेस देखिए क्या क्या दे रखा है, 2,7 और 1,1 और दे रखा है 10,8. चलिए हम लोग अपने फॉर्मूले पे ले चलें. फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मान लीजिए यही कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो हम लोग बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसको हम लोग हाफ लेंगे और ध्यान रखेंगे लास्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है. यदि नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, 7 लेंगे, 1 1 1 1 10 8 और 1. आप चाहें तो प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिखा नहीं हुआ, आप जैसा फील करें उसको निकाल लीजिए. तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं. तो देखिए 1/2 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो कर लेते हैं. तो देखिए फर्स्ट रो में लेंगे आप, तो पहले 2 ले लीजिए, इसको छोड़िए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1 और इधर से माइनस कर दीजिए 8. फिर इसी तरीके से हम लोग बीच वाले आएंगे डिटरमिनेंट में, तो हमारा -7 हो जाएगा. इसको और इसको छोड़िए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्या आएगा 1 और इधर से करेंगे तो -10 हो जाएगा. फिर आप देखिए लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो +1, इसको और इसको छोड़ दीजिए 8 और -10. तो इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट तो ऑपरेट कर दिया. देखिए इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं. इसमें 1/2 ये आएगा -7, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14. ये आ रहा है -9, तो ये हो जाएगा +63. और यहाँ पे देख लीजिए क्या आ रहा है -2, तो ये आपका हो गया -2. अब आप देख लीजिए ये कितना आ रहा है 16, -16 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका पॉजिटिव में पहले से ही आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स. बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था. तो बाकी इस पे 2 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं फर्स्ट और थर्ड अपने आप करेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. हम लोग देखिए इसमें पहले ही बता दिया कोलिनियर, इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने आप 0 आना चाहिए. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए दे रखा है a, b + c, साइक्लिक ऑर्डर में होता है. b का कोऑर्डिनेट दे रखा है b, c + a और c कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको c, a + b. अब देखिए कोलिनियर प्रूफ करना है, तो चलिए हम लोग इसका एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आएगा 1/2. कोऑर्डिनेट्स लिख डालते हैं a और b + c और यहाँ 1, यहाँ b, यहाँ पे c + a और यहाँ 1, यहाँ पे c और ये a + b और ये 1. बताइए बच्चों ये 0 क्यों होगा, कन्वर्ट करना है हमें. तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा देंगे. आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है 4.2 में. प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, C1 को C2 से ऐड कर दीजिए आप. तो देखिए C1 को C2 से ऐड करते हैं, यहाँ पे C1 टेंड्स टू C1 + C2. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर चल ही रहा था, ये हो जाएगा a + b + c, ये भी हो जाएगा a + b + c और ये भी हो जाएगा a + b + c. बीच वाले को तो हमने कुछ करा ही नहीं है, तो b + c, c + a और a + b और लास्ट में क्या है 1 1 1.
जैसे ही आप इसको कॉमन निकालेंगे 1 1 आ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, हेंस दे आर कोलिनियर। देयरफॉर ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज एरिया ही नहीं फॉर्म हुआ। तो बच्चों समझ गए ये आप कि जब भी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आए आप सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। और हम लोग जबरदस्ती ट्रायंगल बना के इसका एरिया निकालें तो 0 ही आना चाहिए। तो ये आपका बच्चों 2 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो गए। चलिए बच्चों हम लोग अब इसके 2 और कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन रह गया है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये 4th क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए पढ़ाया एरिया ऑफ ट्रायंगल है और लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। 2 पॉइंट दे रखा है, ये मान लीजिए हम लोग 1, 2 यहाँ मान लेते हैं, और ये आपका है 3, 6, और कह रहा है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजरेगा उसका इक्वेशन। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग इस पे एक और पॉइंट मान लेते हैं P, जिसका जनरल पॉइंट x, y है। तो अब क्या होगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट लगा देना, कोई ज़्यादा ये नहीं, और आपका अपने आप एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से पता है कोलिनियर पॉइंट है, या आप यूँ मान लीजिए कि PAB आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, सो दे आर कोलिनियर, हेंस एरिया इज इक्वल टू 0। तो अब इसका एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2, देखिए यहाँ पे पहले x और y और 1, इसमें ले लेंगे 1, 2 और 1, 3, 6 और 1, इसको 0 कर दीजिए। ये 2 उधर जाके अपने आप 0 हो जाएगा, केवल आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑपरेट करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 कर लीजिए, x लिया, इसको छोड़ना होगा, तो 2 और -6 लिख लीजिए इसको। देखिए बीच वाला लेंगे, यहाँ पे -y करेंगे और इसको छोड़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1 - 3 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला लेंगे 1 इंटू इसको छोड़ेंगे आप, और 6 - 6 0 हो जाएगा ये। अब देखिए क्या आ रहा है निकल के, ये आपका इस समय राइट साइड में 0 चल रहा था, 2 से पहले ही बता दिया था मैंने आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये -4x हो जाएगा। यहाँ पे -2 बचेगा तो ये +2y आ जाएगा, और ये आपका 0 ही हो गया। तो आप यूँ कह सकते हैं इसको कि दिस इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन में से आप ऐसा करें कि 2 निकाल लें बाहर, या -2 निकाल लें। तो -2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x और -y इक्वल टू 0। तो आप बता सकते हैं कि 2x - y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगा। देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे थे हम लोग कि जब आपको एरिया दे रखा होगा तब आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 35, और आप फॉर्मूला जानते ही हैं। फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और -6 और 1, 5, 4 और 1, इसमें एक मिसिंग कोऑर्डिनेट है k, 4 और 1। तो देखिए जब एरिया गिवन हो और मिसिंग कोऑर्डिनेट पता लगाना हो तो आप इसको प्लस माइनस लेंगे। इसी बात की जिक्र कर रहे थे कि k ऊपर होगा, नीचे होगा, कहीं भी होगा, 2 ट्रायंगल पॉसिबल है विद द सेम एरिया इज प्लस एंड माइनस। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखिए क्या हो, ये आपका आ गया +/70, और इसको ऑपरेट कर दीजिए, आप चाहे यहाँ से ऑपरेट कर लीजिए, हम लोग इधर से ऑपरेट कर लें इसको। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1 इस साइड में लिख दीजिए, जैसे प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर रहे हैं तो चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 लेंगे तो इसको छोड़ा जाए तो क्या होगा, 4 - 4 0 ही हो गया। अच्छा चलिए अब यहाँ लेते हैं, तो ये -5, इसको और इसको छोड़िए इसमें, तो ये क्या आ जाएगा -6, और इधर से करेंगे तो -4, और लास्ट वाला आपको क्या लेना है, +k लेंगे तो इसको छोड़ना होगा, -6 और -4, इधर से -6 और -4। अब देखिए इसको ऑपरेट करने पे क्या आ रहा है, ये +/70 चल रहा था, ये तो 0 ही हो गया, छोड़ दिया जाए, ये कितना आ रहा है -10, और ये तो ये आपका +50 हो जाएगा। अच्छा इसका क्या आ रहा है, ये -10k। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हम लोग मान लीजिए थ्रू आउट 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, +/7 इज इक्वल टू 5 - k। मैंने 10 को सबसे डिवाइड कर दिया। इसके बाद एक बार यदि आपने +7 लिया, केवल +7 वैल्यू ले लिया, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा -2। ये उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। यदि मान लीजिए आपने k का वैल्यू -7 ले लिया और 5 - k दिया है, तब k का वैल्यू क्या आएगा, इसको इधर ले आइए, इसको ऐड कर दीजिए, तो k का वैल्यू 12 आ गया। तो आपका k का 2 पॉसिबल वैल्यू है, एक 12 और एक -2। ये आपका MCQ ऑप्शन था,
तो इसका शायद ऑप्शन नंबर जो है 5th का डी पार्ट, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से मतलब जब भी एरिया दे रखा हो तो आप ध्यान रखिए कि आपको के का जो मिसिंग कोऑर्डिनेट उसके 2 वैल्यू जाएंगे यदि आप प्लस माइनस लेंगे तो। देखिए बच्चों, अभी हम लोग माइनस और कोफैक्टर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आएगा। माइनर को MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल AIJ से। मान लीजिए आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है और इस माइनर निकालने के क्रम में ध्यान रखेंगे हम लोग कि कम से कम मिनिमम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम लोग इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का है तो हम लोग डिटरमिनेंट का नोटेशन A11, A12, A21 और A22। अब देखिए, अब आपको इसके हर एलिमेंट का माइनर निकालना है। माइनर होता है, माइनर इन जनरल क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालने के लिए कहा जाता है उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए उसका नोटेशन MIJ लिख लेंगे। मान लीजिए आपको कहेगा फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट A12, तो आपका इसका नोटेशन हो जाएगा M12, मतलब उस पोजीशन का आप माइनर निकालें। निकलता कैसे है, बहुत आसान है। जिस पोजीशन का एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को कैंसिल कर दीजिए और बचे हुए पार्ट का डिटरमिनेंट बताना है आपको। तो इसलिए मैंने बताया माइनर उसी डिटरमिनेंट का निकलेगा जिसका ऑर्डर n जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से छोटा लेंगे, मतलब आप सिंपल एक ऐसे लिख लेंगे तो इसमें आप छोड़ेंगे क्या और लेंगे क्या, इसलिए इसका पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपका कंडीशन दिया है कि एस माइनर वैसे डिटरमिनेंट का निकाला जाएगा जिसका ऑर्डर मिनिमम 2 हो या 2 से बड़ा हो। अब देखिए, मान लीजिए इसका निकालना है तो इसका माइनर क्या क्या हो जाएगा। मान लीजिए इस पोजीशन का निकालना है, इसको छोड़ेंगे तो इसका माइनर A21 आएगा। चलिए इसका फर्स्ट एलिमेंट का भी निकाल देते हैं। M11 क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे आप तो A22 आ जाएगा। इसी तरीके से इस पोजीशन का निकालेंगे तो M21 लिखेंगे हम लोग और इसको छोड़ देंगे तो 12, मतलब जस्ट उसको छोड़ने के बाद, उस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट से डिटरमिनेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बच पा रहा है बच्चों, इसलिए हम केवल इसको छोड़ते हैं और इसको लिख डालते हैं। तो ये आपका हो गया। अब जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट वाला होता तो हम लोग देख लेंगे 3 एलिमेंट वाले में कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर को चलिए समझते हैं बच्चों। कोफैक्टर कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, केवल माइनर के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया है कि इसमें माइनस की पावर, वो जो हमने बताया था ना डिटरमिनेंट ऑपरेट करने पे प्लस माइनस क्यों अल्टरनेट चलता है, तो ये इसी कोफैक्टर की वजह से चलता है। I+J और MIJ के बराबर होता है। अब मान लीजिए आपको दे रखा है एक डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर का, तो ये सपोज करिए जनरल लेंगे तो A11, A12, A13 और A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। अब देखिए बच्चों, आपसे यदि कह देगा कि भाई कोफैक्टर निकालो और माइनर भी निकालो इसका, तो चलिए हम लोग इसका माइनर निकालने के लिए बताते हैं क्या। जैसे मान लीजिए किसी का माइनर निकालना है, इस पोजीशन का माइनर निकालना है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड, एग्जाम में आता है 1 नंबर में ये, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ, सपोज करिए उसने दे दिया A12 एंड A21, इस दोनों का निकालना। चलिए पहले हम लोग निकालते हैं A1 M2 क्या होगा। तो देखिए क्या बताया आपको मैंने, इस पोजीशन का कह रखा है तो इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे और बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट बताएंगे। तो बचा हुआ एलिमेंट क्या क्या बचा, A21, A23 और A31 और A33। अब इसका डिटरमिनेंट आपको आता है, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर से माइनस कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो A21 A33 और माइनस A31 A23। यहाँ पे हर जगह बच्चों नंबर होगा, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल एक नंबर आएगा, लास्ट में एक वैल्यू आ जाएगा। अब इसी का देखिए कोफैक्टर निकालना होता तो हम लोग इसका A12 का कोफैक्टर निकालने में, ये तो वैल्यू निकाल चुके आप, तो -1 की पावर में 1+2 करेंगे। तो 1+2 एक ये ऑड नंबर आ गया और ये माइनर आपने पहले से निकाल रखा है, ये एक वैल्यू होगा I mean टू से, तो इस तरीके से ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे।
हम लोग रेफरेंस के लिए, इससे पहले कि मैं आपको एक रेफरेंस दूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं मैं यहाँ पे। किसी भी डिटरमिनेंट को निकालने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग रो और उसी के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, डिटरमिनेंट मान लीजिए डेल्टा से डिनोट किया, तो A11 और कैपिटल A11 प्लस A12 और कैपिटल A12 और A13 कैपिटल A13। इसको यदि आप कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए यही हम लोग करते आए हैं, A11 लिखते थे, इसको छोड़ के लिखते तो ये वाला पार्ट आता था, फिर यहाँ माइनस लिखते तो अपने आप आपका A12 में माइनस आएगा। ये किसी भी रो में होगा बच्चों, ये यही चीज मान लीजिए आप इधर से निकालते हैं A21 और कैपिटल A21, ये कोफैक्टर को डिनोट करता है, A22 और कैपिटल A22 और A23 और कैपिटल A23। जब भी किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का है, तो तीनों एलिमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को आप मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो हमेशा डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। दे विल गिव द सेम रिजल्ट। यू कैन आइदर गो फॉर फ्रॉम थर्ड रो, यू कैन इवन गो फॉर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट, आप मान लीजिए कि किसी एलिमेंट किसी रो का लेते हैं और कोफैक्टर किसी और का ले लेते हैं तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगा। इस बात को समझिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बुक में भी दिया हुआ है। डिटरमिनेंट्स बिकम 0 इफ A11 और आप A21 ले लीजिए प्लस A12 और A22 ले लीजिए, A13 और A23। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने एलिमेंट ये ले लिया लेकिन कोफैक्टर इसका ले लिया। आप चाहें तो इसका कोफैक्टर ले लें। यदि आपने ये कॉलम लिया है तो आप इन दोनों में से किसी भी कॉलम का कोफैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हमेशा 0 आएगा। दिस इज गिवन द रिमार्क्स ऑफ द एनसीईआरटी बुक। अब देखिए आप एक्सरसाइज 4.3 में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप उसको कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे रेफरेंस के लिए मैंने आपको कहा था ना कि नंबर्स होते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं ट्राई करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपका ये 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है, फाइंड राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो यहाँ दे रखा है 2, -4, 0 और 3। जब माइनर्स की बात करेंगे तो आप चारों माइनर लिखेंगे, M11, M12, M21, M22। बच्चों इसको ना जिस तरीके से एलिमेंट होता है उसी में करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इसको छोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे आप इधर से छोड़ेंगे मतलब इस पोजीशन का रो और कॉलम छोड़ देना है तो यहाँ -4 आ जाएगा। इसको लेंगे तो इन दोनों को छोड़ दीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये आपका माइनर हो गया। कोफैक्टर का जहाँ तक सवाल है, A11, A12 और A21 और A22, मैंने क्या बताया, इसका पोजीशन देख लीजिए और प्लस माइनस साइन कर दीजिए। इन दोनों का सम इवन आ रहा है तो यही रहेगा जो माइनर आया। इन दोनों का सम ऑड आ रहा है लेकिन 0 का कोई साइन नहीं होता, फिर लिख दीजिए। इन दोनों का सम ऑड रहा है, माइनस आ रहा है तो ये +4 रहेगा बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। ये देखिए M22 जो है यहाँ पे सम इवन आ रहा है तो इसलिए यही लिख लेंगे, तो यही कोफैक्टर और यही। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज आप बड़े आराम से बनाएंगे, आसान है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। छोटा वीडियो था, आपको 4 कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बताया और माइनर कोफैक्टर बताया। अभी कोफैक्टर का आगे हम लोग यूज़ देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 4 को देखने से पहले आप ज़रूर पार्ट 3 देखेंगे। और थैंक यू, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए।